Hello everyone. Today we discussed about the next method, that is expenditure method. That is expenditure method. So we have to calculate national income through expenditure method. The persons expend some amount of money for purchase of their necessities goods, for purchase of capital goods, and so on. So, beta, in every method, there are three steps to calculate national income. Just like in production method, there are three steps. Like step number one, identify all the producing unit and classify them into following. Then step number two, GDPMP is equal to sales minus IC plus change in stock. And step number three is calculate national income. Shift from production to income method. First step is identify all the factor income and classify them into following. There are 3 points in income method, such as compensation of employee, operating surplus, and mixed income. So we are shifted from income to expenditure method. Step number one is identify identify all the expenditure and classify them into following into following. There are four types of expenditure, beta. There are four types of expenditure. First one is private final consumption expenditure. In short form, it's called PFCE. In short form, it's called PFCE. Then government final consumption expenditure. In short form, it is called GFCE. Then gross domestic capital formation. In short form, it is called GDCF. And the last point is net export. Net export. Net export beta formula is equal to export minus the value of import. Export and the value of import. Export is denoted through X and import is denoted through M. So net export is equal to X minus M. So beta, in expenditure method, we have to identify all the types of expenditure, and all the types of expenditure is classify them into following. First point is private final consumption expenditure. Second point is government final consumption expenditure. Third point is gross domestic capital formation. And the last point is net export. And the net export is equal to export minus import. सिंपल, बड़ा सिंपल है. प्राइवेट सेक्टर अपने कंजप्शन पे खर्च कर रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर अपने कंजप्शन पे खर्च कर रहा है. सेम उसी तरह यहाँ पे डेली नेसेसिटीज़ गुड्स हैं. ये दोनों डेली नेसेसिटीज़ हैं. लाइक प्राइवेट वाले डेली नेसेसिटीज़ पे एक्सपेंड कर रहे हैं, गवर्नमेंट वाले डेली नेसेसिटीज़ पे खर्च कर रहे हैं. सेम उसी तरह प्राइवेट प्लस पब्लिक दोनों बेटा कैपिटल फॉर्मेशन मतलब कैपिटल एसेट्स पे खर्च कर रहे हैं. यहाँ पे तो आप डेली नेसेसिटीज़ वाले गुड्स बोल सकते हो, कंज्यूमर गुड्स. और कैपिटल फॉर्मेशन मतलब क्या, कि जहाँ पे कैपिटल एसेट्स को परचेज करने के लिए कुछ ना कुछ पैसे क्या करे जाएँ, खर्च करे जाएँ. एंड द लास्ट वन इज़ नेट एक्सपोर्ट. और आप जानते हो एक्सपोर्ट क्या होता है और
इम्पोर्ट क्या होता है। क्लियर है? लेट्स गो इन स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 बेटा, स्टेप नंबर 2 आपको याद होगा कि इन प्रोडक्शन मेथड, in step number 2 we have to calculate GDP-MP. In income method we have to calculate NDP-FC. So same in expenditure method, in step number 2 we have to calculate GDP-MP. GDP-MP beta, same GDP-MP. So GDP-MP is equal to, add all these 4 items like private final consumption expenditure, government final consumption expenditure, gross domestic capital formation plus net export means export minus import. Net export means export minus import. So बेटा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में मैंने कुछ स्टार लगाया है। क्यों? कुछ यहाँ पे रूल्स हैं। रूल्स क्या, जो आपको पता होगा, क्वेश्चंस में आपको आगे मिलने हैं। एंड लास्ट स्टेप नंबर 3, एंड you know about step number 3. So we have to find out national income with the help of GDP-MP. So formula बना लो, MP to FC minus NIT, DP to NP plus NFIM, and gross to net minus depreciation. So ये आपका लास्ट मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक छोटा सा रूल है, किसके बारे में? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में। इन फॉर्मूला हमें चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, बट इफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो, सो बेटा we have to find out, always we have to find out gross domestic capital formation, gross domestic capital formation and gross domestic capital formation। तीनों में से कोई एक चीज़ होगी, एनी वन क्वेश्चन में। अगर सिंपली ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया गया है तो हम लोग ये रूल नहीं लगाएंगे। इफ़ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है, सो बेटा हमें ये रूल फॉलो करना है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह कभी कभी समटाइम्स हमें नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, सो डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हमें चाहिए क्या? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्वेश्चन में क्या दिया गया होगा? नेट डोमेस्टिक। अच्छा, अगर ग्रॉस डोमेस्टिक दिया गया है तो हम लोग ये रूल नहीं लगाएंगे। इफ बेटा नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया गया, नेट दिया गया है, तो बेटा नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन से हमें ग्रॉस निकालना है, ऐसे आना है। सो बेटा डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन से डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कैंसिल, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन से डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कैंसिल। सो नेट टू ग्रॉस, सर नेट टू ग्रॉस जाने के लिए प्लस करते हैं क्या? प्लस करते हैं डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन। ठीक है, देखो ये नेट डेप्रीशिएशन। इफ़ ये होगा आपका, ठीक है, लाइकवाइज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हमें दिया गया है, हम लोग ये रूल नहीं लगाएंगे। इफ़ इसकी जगह नेट दिया गया है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, सो वी हैव टू ऐड अप नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन विद डेप्रीशिएशन, और क्या आ जाएगा? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। सेम बेटा, सेम चीज़, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। सो बेटा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में देखो एक फिक्स्ड वर्ड नहीं है, फिक्स्ड। तो GDCF इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक, लाइकवाइज हमें GDCF दिया गया है तो ये रूल लगेगा ही नहीं। इफ़ हमें ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया गया है तो फिक्स्ड में कर देंगे प्लस चेंज इन स्टॉक, और चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। सेम बेटा, और बोलो तीनों में से कोई एक होगा पॉइंट, तीनों नहीं होंगे। और इट इज़ अ समेशन ऑफ पॉइंट नंबर 1 and 2, नेट
डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। सो बेटा नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दोनों समेशन है। डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बेटा नेट से ग्रॉस जाना था सर प्लस डिप्री प्लस फिक्स्ड दिया गया है तो प्लस चेंज इन स्टॉक आ जाएगा। सिंपल रूल है, इफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया गया है तो ये रूल नहीं लगेगा, और अगर हमें ग्रॉस की जगह नेट डोमेस्टिक दिया गया है प्लस डिप्री कर देना, ग्रॉस की जगह फिक्स दिया गया प्लस चेंज इन स्टॉक कर देना, और ग्रॉस की जगह नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया गया तो प्लस डिप्री प्लस चेंज इन स्टॉक दोनों हो जाएगा। सो स्टेप नंबर 1 सारे एक्सपेंडिचर को पता लगाना है 1 2 3 4। स्टेप नंबर 2 सिंपल है बेटा, सारी चीज़ों को ऐड अप कर दो, सब कुछ ऐड कर दो। स्टेप नंबर 3 नेशनल इनकम निकालना है। कुछ रूल्स हैं, इफ जीडीसीएफ दिया गया है वेल एंड गुड, लाइकवाइज इनकम मेथड में प्रॉफिट दिया रहता था, अच्छी बात थी। नहीं होता तो हम लोग रूल लगाते थे बेटा किसका, डिविडेंड प्लस कॉर्पोरेट टैक्स प्लस कॉर्पोरेट प्रॉफिट। सेम गोज विथ यहाँ पे जीडीसीएफ दिया गया वेल एंड गुड, नहीं है तो इन तीनों में से कुछ होगा, जो होगा आप उसका रूल लगा देना। सिंपल है बेटा, ना इनकम मेथड में कुछ माइनस करना है, ना एक्सपेंडिचर मेथड में कुछ माइनस करना है, आपको जस्ट क्या करना है, आपको जस्ट ये क्वेश्चन सॉल्व कर देने हैं। तो ये एक्सपेंडिचर मेथड है, नोट इट डाउन इन योर